Hey guys, what's up? Welcome back to today's video. I hope all of you are good. I hope all of you are in your homes and preparing for JEE Advanced examination and JEE Main exam also. So यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर का कैंपेन था, आई होप आपने उसमें भी पार्टिसिपेट किया होगा। 9 बजे 9 मिनट, ठीक है। तो 9 बजे 9 मिनट को हमें दिया, मोमबत्ती, फ्लैश लाइट जो भी मिलेगा उससे हमें इंडिया की यूनिटी जो है उसको रिप्रेजेंट करना था। सो लेट अस राइट अवे स्टार्ट विद द मॉक टेस्ट। आज का लेक्चर क्या होने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। सो टुडेज लेक्चर विल बी अ मॉक टेस्ट ऑफ द कंप्लीट सिलेबस ऑफ 11th स्टैंडर्ड। तो अगर किसी ने 11th स्टैंडर्ड का फुल सिलेबस यहाँ पे पढ़ रखा है, प्रैक्टिस कर रखा है, ओके, सो दिस विल बी अ टेस्टिंग। आप अपने आप को टेस्ट करोगे कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। तो जिन लोगों ने 11th स्टैंडर्ड का पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस पढ़ रखा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। सो लेट अस राइट अवे स्टार्ट विद द क्विज। Okay, so before we start, let me just introduce myself. So this is me, Nishant Vora. In short, you can just call me NV. I have done BTech from IIT Patna. I have 7+ years of teaching experience and mentored 5 lakh plus students. इस वीडियो को शेयर भी कर देना with the hashtag of JEE Live Daily so that quickly we can start with the video. Okay, one more thing, guys. We have done like if you are in grade 11th or if you are in grade 12th, okay, all the PDF lecture notes and all the videos are available for you guys on this channel. So the entire syllabus of 11th standard and 12th standard has been completed on this channel, and all the video lectures and all the notes, everything is available at this URL. तो अब आपको इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप इस URL पे चले जाइए। Okay, one more thing, guys, that you can also join our Telegram group. Here close to 32,000 members they have already joined. तो अगर आपको ज्वाइन होना है तो just go to your browser and type this URL. And there is one special announcement also, guys, for you. That is, I have completely launched one full batch of 11th standard and 12th standard on our Plus platform. So if you want to enroll, you can enroll in both the courses. One course is like the detailed batch for 11th standard. So here we are just starting with the first chapter of 11th, and in this batch we are just starting with the first chapter of 12th standard. Okay, तो यहाँ पे आपको एकदम बेसिक लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल टू वेरी एडवांस लेवल एवरीथिंग विल बी कवर्ड। यहाँ पे आपका थ्योरी भी कवर्ड हो जाएगा, ठीक है। आपको जो भी स्टडी मटेरियल है वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको रेगुलरली होमवर्क भी मिलेगा, तो आपको होमवर्क भी करके लाना है, ठीक है। तो ये जो दोनों कोर्सेज है उसमें थ्योरी भी कवर हो जाएगा, आपके डाउट्स जो भी है वो भी क्लियर करवाए जाएंगे, और प्रैक्टिस सेशंस भी है यहाँ पे। तो डाउट्स, प्रैक्टिस, थ्योरी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। So this course will be a very detailed course. इसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, whatever is required for JEE Main and JEE Advanced. Plus also there are some mock tests also. जैसे अगर आप कोर्स करते हो उसमें every week there will be one test. Okay, I have designed this course in such a way that every week there will be one test. तो आप वीकली बेसिस पे अपने आप को टेस्ट भी कर रहे होंगे, ठीक है। सो हियर कंप्लीटली लाइक दिस इज वेरी डिटेल्ड कोर्स, और इसको एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से मैंने बनाया है। So definitely you can enroll in both the courses, okay, whichever your respective courses. If you are in 11th, you can go for this course. If you are in 12th, you can enroll in this course. And both the courses are available on our Plus platform, ठीक है। तो अगर आपको Plus पे आना है, ठीक है, for this courses you need to come on our Plus platform. और यहाँ पे थोड़ा सा टाइमिंग भी बता देता हूँ. This courses will go on Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 4 days. फ्राइडे, सैटरडे, संडे विल बी योर टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, ठीक है, जहां पे आप अपना होमवर्क करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे। क्योंकि केवल लेक्चर्स अटेंड करने से ही नहीं हो जाएगा, आपको सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा, होमवर्क्स करने पड़ेंगे, डीपीपी और शीट्स जो दिए जाएंगे वो भी आपको वहां पे करने पड़ेंगे। फाइन, तो यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। एंड फॉर 11th स्टैंडर्ड द टाइमिंग्स आर 8:30 to 10 p.m. and for 12th standard the timings are 6:30 to 8. Okay, so you can enroll in your respective courses which are happening on Plus. So if you want to come on Plus, okay, then these are the pricings for now. Like for 1 year it is 27,000 for the subscription, and for 2 years it is 32,400. Okay, so right now the prices are also minimum. अगर आप देखोगे तो कुछ महीने पहले ये जो प्राइस थे वो 48,000 कुछ था. For now the prices are 32,000, and once our courses will start, I'll tell you one more thing, guys. Like in the month of April, only in the month of April, in 1 month only, like 50 plus courses are starting on our Plus platform. तो जैसे ही ये सारे courses और batches, हमारे जो full year के batches है, 11th standard के, 12th standard के, droppers के, ये सभी batches जैसे ही start हो जाएंगे, so this subscription price also might go up. ठीक है, right now this is the price, but it might go up in future. And definitely, if you are using my code which is NV Live,
then you will get 10% instant discount also. तो अगर कोई प्लस पे आना चाहता है, they can use my code. Okay, this is my love towards you guys. तो अगर आप ये कोड यूज करते हैं, अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं, if you like my lectures, if you like the mock test that I am taking again and again, okay, so if you are watching my videos and if you want to support me directly, then you can use my code. इससे आपको 10% instant discount भी मिल जाएगा. ठीक है. if even if you think that this amount is too much for you, then you can also pay by using EMI option which is available on our website. तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं. Fine. So let us start with the quiz. Let's start with the quiz. The first question. Okay. The first question is here. 3x plus 4y is equal to 12 root 2. So I'll give you some time. Okay. You need to try. And then finally, if you are not getting, I'll tell you the answer. But anyways, you need to calculate your score also. यहाँ पे अपना score calculate करते जाओ. If you are getting correct answer, then it will be +4. If you are getting wrong answer, it will be -1. तो एट द एंड ऑफ द क्विज हमें एक आइडिया भी लग जाएगा कि यार मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे अपने मार्क्स कैलकुलेट करते चलो. तो लास्ट में हमें पता चलेगा कि यार इस तरह के अगर 11th स्टैंडर्ड का अगर मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ फॉर जेईई मेन एंड एडवांस, तो मेरे कितने मार्क्स, मेरे कितने नंबर्स बन रहे हैं. ठीक है. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है. दिस लाइन ओके इज टेंजेंट टू दिस एलिप्स. तो बेसिकली ये लाइन जो है वो इस एलिप्स को टच करेगा. ठीक है. इस एलिप्स को क्या करेगा, टच करेगा. इट इज अ टेंजेंट. So we want to find out the distance between the foci of the ellipse. अब distance between the foci, I think ये तो सबको पता ही है, that is 2AE. So we want to find out the value of 2AE. Okay, and this line, okay, इसको ऐसे लिखते हैं. देखो ऐसे देखो, y equal to, y का वैल्यू निकालो, इसको इधर शिफ्ट कर दो. So y equal to -3x plus 12 root 2 divided by 4 and here also divided by 4. So this is the tangent. और ellipse में we already know the slope form. Slope form से लिख दो. Slope form क्या होता है? y equal to mx plus under root of a square m square plus b square. और b square का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 9. ओके, सो b square का वैल्यू इज 9. अब इन दोनों को क्या कर लो, कंपेयर कर लो. बस सीधा सीधा कंपेयर करोगे तो यहाँ से a square का वैल्यू आ जाएगा. m का वैल्यू कितना आ गया? देखो डायरेक्ट कंपेयर कर लिया हमने, तो m का वैल्यू आ गया. इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो m आ गया -3/4. तो m का वैल्यू आ गया -3/4. और इन दोनों को भी इक्वेट कर दो. ये कितना है? ये है 3 रूट 2. ठीक है. सो 3 रूट 2 इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी. 3 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 18. एंड दैट इज इक्वल टू इसका स्क्वायर. इसका स्क्वायर इज a स्क्वायर m स्क्वायर. m स्क्वायर का वैल्यू है 9/16. तो यहाँ पे 9/16 और प्लस ये वाला 9. ओके, सो 9 कैंसिल हो जाएगा. तो ये आ जाएगा 2 इक्वल टू a स्क्वायर बाई 16 प्लस 1. तो यहां से a स्क्वायर सॉल्व कर लो. a स्क्वायर कितना आ गया? 16 आ गया. a स्क्वायर आ गया 16 और b स्क्वायर का वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 9. ओके, तो अब हमें निकालना है 2ae. तो a और b में जो इक्वेशन है उसको यूज करके e निकाल लो. कैसे निकालेंगे? तो हमारा जो इक्वेशन होता है दैट इज b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर. ये होता है. इसको ओपन कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर दो. तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे e निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली तुम a इंटू e का वैल्यू निकालो डायरेक्टली. तो a स्क्वायर e स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मींस दिस इज 16 माइनस 9. तो ये 7 आ गया. तो a इंटू e का वैल्यू कितना आ जाएगा? दिस इज a स्क्वायर e स्क्वायर. तो a इंटू e, इसका वैल्यू आ जाएगा √7. सो 2√7 इज योर आंसर. आसान है. यस, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, काफी आसान है. ऑलरेडी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन. हमने स्लोप फॉर्म में भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख ली एलिप्स में, एंड देन वी आर कंपेयरिंग. सिंपल, तुम कंपेयर कर लो तो आंसर आ जाएगा. फाइन. सो दिस वाज वन इजी क्वेश्चन. आई होप यू गॉट +4. अगर तुम्हारे ये क्वेश्चन अगर सही आंसर है, सो यू नीड टू ऐड +4 एंड विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे. कम ऑन. तो यहाँ पे एक सीक्वेंस गिवन है 3 + 4 + 8 + 9. तो वी नीड टू फाइंड आउट द सम अप टिल 40 टर्म्स. 40 टर्म्स का सम निकालना है, एंड दैट सम इज ऑलरेडी गिवन एज 102m. सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m. m का वैल्यू पता करना है. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m? कम ऑन, ट्राई दिस फॉर सम टाइम. ओके, ये सीक्वेंस को मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे. 3 + 4 + 8 + 9. तो इस सीक्वेंस का सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है ये बताओ. सबसे इंटरेस्टिंग कोई पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे? जैसे ही तुम इसको लिखने लगोगे, इसके 40 टर्म्स है. ठीक है, ऐसे करते जाएंगे टिल 40 टर्म्स. इसका सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है बताओ. इसका सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दो टर्म्स अगर तुम देखोगे ना तो कॉन्सिक्यूटिव है. 3 and 4, 8 and 9, 13 and 14, 18 and 19, ये सब कॉन्सिक्यूटिव है.
तो तुम क्या करो, सिंपल इसका तरीका ये है कि 3 और 4 को ऐड कर दो, 3 प्लस 4 कितना 7, इन दोनों को भी ऐड कर दो तो नेक्स्ट टर्म कितना आएगा 7, फिर यहाँ पे आ गया 17, इनको ऐड करोगे तो ये आ गया 27, फिर इनको ऐड करोगे तो ये आ गया 37, और ऐसे कितने टर्म्स आएंगे। अब दो दो टर्म्स हमने क्लब कर लिए, तो अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। तो नाउ देयर विल बी ओनली 20 टर्म्स। चमका, यस। तो हमने क्या किया, सब दो दो टर्म्स जो भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स थे उनको ऐड कर दिया। अब ये क्या लिखा हुआ है, अब अगर इसको तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ जाएगा, समझ आ जाएगा, चमक जाएगा कि दिस इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हर बार देखो कॉमन डिफरेंस कितने का है, 10 का है, हर बार वी आर एडिंग 10। तो अब तो ये एपी आ गया, सम ऑफ 20 टर्म्स निकाल लो बस। तो फॉर्मूला क्या होता है, n by 2 number of terms divided by 2, 2 into a, so 2 into a will be 14 plus n minus 1, तो 19 आ जाएगा, into d, कॉमन डिफरेंस कितना है 10, तो ये आ गया सम। और ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 102m। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10, और ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2040 आएगा। करके देखो, 2040 इज इक्वल टू 102m। तो यहां से सॉल्व करोगे तो m का वैल्यू आ गया 20। Okay, so therefore the correct answer is m is equal to 20, option A. So I hope this is clear. एकदम ही आसान क्वेश्चन था। This question has been asked. Okay, ये जेई मेन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, जेई का पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, जेई मेन का ही। फाइन, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज फ्रॉम कंटिन्यूटी। ओके, ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, तो व्हेन विल दिस फंक्शन बी कंटिन्यूअस। बेसिकली लिमिट्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो डरने की बात नहीं है। अगर तुमने बेसिक लिमिट्स भी पढ़ा है ना, तो आई थिंक यू कैन डेफिनेटली डू दिस क्वेश्चन। केवल इतना समझने की जरूरत है कि ln log ऑफ 1 प्लस डब्बा डिवाइडेड बाय डब्बा, ये तो मैंने आई थिंक लास्ट क्लास में भी बताया था, इसका वैल्यू 1 होता है। अगर हम लिमिट निकालते हैं तो इसका वैल्यू 1 होता है। फाइन, तो बेसिक कंटिन्यूटी अगर आपने पढ़ा है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, तो इसको आप डेफिनेटली कर लोगे। अगर आपने एनसीईआरटी लेवल भी पढ़ा है तो भी आप कर लोगे। फाइन, तो एफ एक्स एक फंक्शन है, वो गिवन है, और ये बोल रहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होता है ना जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ओके, एट एक्स इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 निकाल देंगे ऑफ एफ एक्स। ओके, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो एफ जीरो कितना है, ये एक्स इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, दिस इज एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू है के। ओके, तो ये तो आ गया k, तो k का वैल्यू निकालना मतलब इसका लिमिट निकाल दो। इसका लिमिट कैसे आएगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे ये जो लिखा है ना, ये log m by n लिखा है, तो इसको अलग अलग लिख दो, ठीक है, log ऑफ, ये आ जाएगा 1 प्लस 3x माइनस माइनस आ जाएगा बीच में, log m माइनस log n, तो ये आ गया, ठीक है, log की प्रॉपर्टी होती है, और डिवाइडेड बाई 1 बाई x से मल्टीप्लाई करना है। सो 1 बाई x से पूरे को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ भी x और यहाँ भी x। अब ध्यान से सुनना, ये वाला हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, log ऑफ 1 प्लस डब्बा डिवाइडेड बाय डब्बा। तो अगर यहाँ पे कुछ भी करके अगर मैं log ऑफ 1 प्लस बॉक्स बाई बॉक्स बना दूं तो 1 हो जाएगा ना वो। तो यहाँ पे log ऑफ 1 प्लस क्या लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है, तो नीचे भी मुझे क्या चाहिए, नीचे भी मुझे डब्बा चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से, डिवाइड कर दो 3 से, ऐसा। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया 1। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये log ऑफ 1 प्लस, ये ऐसे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखो, log ऑफ 1 प्लस माइनस 2x, ये लिखा हुआ है। तो हम डिवाइड मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, अब यहाँ पे क्या करो, -2 से मल्टीप्लाई कर दो, और -2 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ये क्या बन गया, ये भी 1 बन गया, ठीक है, log ऑफ 1 प्लस डब्बा डिवाइडेड बाय डब्बा, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा k इक्वल टू 3 माइनस -2, तो k का वैल्यू आ जाएगा 5। सिंपल, केवल लिमिट निकालना था, ठीक है। तो इफ यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, आराम से हो जाएगा, एकदम ही इजी क्वेश्चन है। फाइन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पैराबोला, ठीक है, कोनिक सेक्शन। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लो, द बेड्स ऑफ टू रिवर्स विद इन अ सर्टेन रीजन आर पैराबोला। तो एक तो पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दूसरा है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दूसरा है स्ट्रेट लाइन, एक पैराबोला एक स्ट्रेट लाइन। These rivers are connected by a straight canal and the coordinates of the end points of the shortest canal, तो shortest distance निकालना है उनके बीच में, तो उनका end points का coordinates, जो shortest distance आएगा, तो उसका एक concept I hope तुम लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि shortest distance is always along the common normal। ये पढ़ा है, सबने पढ़ा है, shortest distance is always along the common normal। अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, पैराबोला अपवर्ड्स।
और इस लाइन को प्लॉट कर दो तो y इक्वल टू, लेट्स से रफली ऐसे प्लॉट कर लेते हैं, दिस इज y इक्वल टू x माइनस 2। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो भी आएगा, मान लो यहाँ पे कहीं पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज अलोंग द कॉमन नॉर्मल, मतलब ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। फाइन। तो ये जो पॉइंट है ना, एंड पॉइंट्स जो है, मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो जो एंड पॉइंट्स है ना उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, फिर बताना है कि A है, B है, C है या D है। ओके, सो नाउ यू कैन ट्राई फॉर सम टाइम P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो बेस्ट ऑप्शन देखो यहाँ पे यही होता है कि ये जो नॉर्मल है, लेट्स से दिस इज नॉर्मल N, तो ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है ये दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज अलोंग द कॉमन नॉर्मल, दोनों कर्व के परपेंडिकुलर है, मतलब इस कर्व के लिए भी नॉर्मल है और स्ट्रेट लाइन के लिए भी वो परपेंडिकुलर है। फाइन। तो P के कोऑर्डिनेट्स तुम पैरामेट्रिक में अज्यूम कर लो, पैरामेट्रिक में लेट्स से मैं P को अज्यूम कर लेता हूँ, x को ले लो t। ओके, तो इसमें x को t पुट करेंगे तो y आ जाएगा t स्क्वायर, तो ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप निकाल दो। नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो हमारा जो कर्व है वो तो ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर मुझे पहले निकालो स्लोप ऑफ टेंजेंट, फिर आएगा ना स्लोप ऑफ नॉर्मल m1 m2 माइनस 1 करके। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके ना, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ गया। अब x का वैल्यू पुट कर दो, x का वैल्यू कितना है t, तो ये 2t बन गया, और ये क्या है, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये जो लाइन है नॉर्मल वाली जो लाइन है उसका स्लोप आ जाएगा -1/2t। ओके, तो इसका स्लोप आ गया -1/2t। अब ये जो नॉर्मल लाइन है और ये जो गिवन लाइन है ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। सो -1/2t मल्टीप्लाइड बाई इसका स्लोप m1 m2 -1 कर दो, इसका स्लोप और इस लाइन का स्लोप कितना है 1, सो दैट विल बी इक्वल टू -1, m1 m2 -1। तो यहां से t का वैल्यू आ गया सीधा सीधा, t का वैल्यू आ गया 1/2। तो अगर t का वैल्यू 1/2 है तो पॉइंट P आ गया ना, पॉइंट P क्या आएगा, t t स्क्वायर, मतलब 1/2 1/4। तो एक पॉइंट तो हमारा डेफिनेटली 1/2 1/4 है, मतलब आंसर ये नहीं हो सकता। अब या तो A होगा या B होगा, ठीक है, या D भी हो सकता है। सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। ओके, A B और D। तो सेकंड पॉइंट निकालो। तो सेकंड पॉइंट निकालने के लिए देखो मेथड बता देता हूं, अब तो बहुत आसान है। पॉइंट P आ गया, इसका स्लोप आ गया, ठीक है, इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप है 1, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा -1, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है ना, और एक पॉइंट पता है। सो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो क्या इस लाइन की इक्वेशन लिख लोगे, फाइंड राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगी, y माइनस y1 इक्वल टू, इसका स्लोप कितना है, नॉर्मल का स्लोप इज -1 इंटू x माइनस x1। तो ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब इस नॉर्मल की इक्वेशन को सॉल्व कर लो इस लाइन के साथ, तो पॉइंट Q आ जाएगा ना, पॉइंट Q इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल एंड दिस लाइन। तो दोनों को सॉल्व कर लो, ये जो दोनों लाइन है इन दोनों को जैसे ही तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करने के बाद आई थिंक बी ऑप्शन आएगा, ठीक है, 11/8 एंड -5/8, तो ये आ जाएगा। ओके, आंसर इज ऑप्शन बी। तो अगेन कैलकुलेट योर स्कोर, ठीक है, कितना हुआ, +4 -1। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बट इट वाज इजी। ये ऐसा क्वेश्चन था जिसको छोड़ के तो नहीं आना चाहिए था एग्जाम में, अगर एग्जाम में आएगा तो हम छोड़ के आएंगे, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7। फाइन, सिंस दिस इज लाइक अ रिकॉर्डेड वीडियो, तो आप पॉज करके भी टाइम लगा सकते हैं, ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन यू कैन टेक योर टाइम एंड देन सी द सॉल्यूशन। आप अपना टाइम लगा लो और उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखना। फाइन, तो यहाँ पे हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7। तो देखो इसके दो मेथड है, एक तो ये डायरेक्टली जीपी दिख रहा है तो तुम जीपी सोच सकते हो, बट जीपी से भी थोड़ा आसान मेथड है। तुम क्या करो, हर एक टर्म में, लाइक इंडिविजुअली हर एक टर्म में, इसमें निकाल लो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7, फिर इसमें निकाल लो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7, फिर इसमें निकाल लो, और ऐसा करते जाओ, ठीक है। तो ये जो पहला वाला टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है, उसमें कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7 कितना आएगा, 10c7 आएगा, 10c7 इंटू x पावर 7। तो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7 ये आ गया 10c7। अब यहाँ पे x पावर 1 तो ऑलरेडी है, ओके, एक x तो ऑलरेडी है, तो ये वाला जो ब्रैकेट है इसमें से हमें क्या निकालना पड़ेगा, x की पावर 6 निकालनी पड़ेगी। तो जो नेक्स्ट कोएफिशिएंट आएगा वो आएगा 9c6, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो ये जो ब्रैकेट है इसमें से क्या निकालना पड़ेगा, एक्स की पावर, यहाँ पे एक्स की पावर 5 निकालनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा 8c5, और ऐसे चलता जाएगा ना। अब ट्रेंड देख लो, 10 9 8, तो नेक्स्ट क्या आएगा 7c4, उसके अगला क्या आएगा 6c3, उसके अगला क्या आएगा
5C2, उसके अगला 4C1 और उसके अगला आ जाएगा 3C0। ये समझ में आएगा? सो दिस विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7। दिस विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो डायरेक्टली भी इसको मत करो, ठीक है, काफी लेंदी हो जाएगा। अगर तुम सबकी वैल्यू निकालने बैठोगे, जैसे इसकी वैल्यू निकाली, फिर इसकी वैल्यू निकाली, फिर इसकी वैल्यू निकाली, तो वो काफी लेंदी है, ठीक है। वैसे आंसर तो आ जाएगा, बट इतना लेंदी कौन करेगा, ठीक है। हमें तो स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, फाइन। तो यहाँ पे एक चालाकी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक चालाकी करनी पड़ेगी। वो चालाकी क्या है? ओके, चालाकी ये है कि 3C0 का वैल्यू क्या होता है? 3C0 का वैल्यू तो 1 होता है। तो 3C0 की जगह तुम 4C0 लिख दो, ठीक है। इसको हटा दो, 3C0 को हटा दो, ठीक है। और इसकी जगह क्या लिख दो? 4C0 लिख दो। ऐसा क्यों कर रहा हूं? देखो पहले तो मैं लिख देता हूं, क्योंकि 3C0 का वैल्यू भी 1 है और 4C0 का वैल्यू भी 1 है। तो 3C0 की जगह डेफिनेटली हम 4C0 तो लिख ही सकते हैं। अब ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब इन दोनों में फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? वो NCR प्लस NCR प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला पता है ना, NCR प्लस NCR प्लस 1। ये फॉर्मूला को याद करने के लिए ये जो n है उसमें प्लस 1 कर दो, n प्लस 1, और नीचे जो भी नंबर्स है ना उनमें से बड़ा वाला नंबर लेना है। तो बड़ा कौन है? r या r प्लस 1? बड़ा तो है r प्लस 1। तो ये, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा? ये 4C1 प्लस 4C0, तो ये बन जाएगा 5C, और दोनों में कौन बड़ा है? 1 या 0? कौन बड़ा? 1। तो 5C1 बनेगा। फिर ये दोनों क्लब हो जाएंगे, देख रहे हो? ये पूरा सारा खत्म हो जाएगा। अब तो ये बन जाएगा 6C2, फिर ये दोनों क्लब हो जाएंगे। फिर ये बन जाएगा 7C3, फिर ये दोनों क्लब हो जाएंगे। फिर ये बन जाएगा 8C4, फिर ये दोनों क्लब हो गए तो 9C5, फिर ये दोनों क्लब हो गए तो ये 10C6, और ये दोनों क्लब हो जाएंगे तो 11C7। तो फाइनली तुम्हारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 11C7, और 11C7 का वैल्यू होता है 330। सो आंसर इज बी। ओके, तो जिनका जिनका आंसर बी आया था, क्या बात है, तुमने तो फोड़ दिया। +4 ऐड कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन जेई मेन में डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। तो अगर आपको ये टेक्निक, ये मेथड अच्छा लगा, ठीक है, काफी हमने चालाकी से क्वेश्चन कर दिया और जल्दी कर दिया। अगर तुम जीपी वाले मेथड से जाते तो करते रह जाते। तो ये चालाकी वाला मेथड है, वही मैंने तुमको बताया, ठीक है। तो अगर ये मेथड अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता है, ठीक है। सब लोग लाइक कर देना वीडियो को, ओके, ताकि ऐसे चालाकी वाले मेथड्स, ठीक है, बार बार अब तुम्हें मतलब हर वीडियो में नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है सॉल्व करने में ऐसे मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक भी कर देना। फाइन, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको आई गेस रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो इतना अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। बट एज ऑलवेज हमारे पास तो शॉर्टकट है, ठीक है। तो लेट मी टेल यू द शॉर्टकट। शॉर्टकट से इसको कैसे करेंगे? देखो शॉर्टकट एप्लीकेबल कब है, पहले तो ये समझ लो। तो ये जो शॉर्टकट है ना, इसको लगाने के लिए पहले कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। दिस इज वन कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज टर्न्ड इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको टर्न किया बाई एन एंगल ऑफ 180। तो तुम बस ये ध्यान रखना कि जब भी एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वो पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज होता है तो नेगेटिव होता है, ठीक है। क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। आई थिंक ये तो पता भी होगा। और इसका जो मैग्नीट्यूड है, ओके, उसको 1.5 टाइम्स कर दिया। मतलब वो जो लेंथ ऑफ द एरो है, इसको अगर वेक्टर की तरह देखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1.5 टाइम्स कर दिया। तो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ठीक है, जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो क्या आएगा, ये बताना है। जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो क्या आएगा। तो इसका एक शॉर्टकट है। यहाँ पे जो पुराना कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है वो क्या है, ये। इसका मैग्नीट्यूड हमें कितनी टाइम्स करना? वी वांट टू मेक मैग्नीट्यूड 1.5 टाइम्स। तो इसमें क्या करो, सिंपल तुम 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जितने भी टाइम्स तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड करना है ना, उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर था पुराना, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.5, मतलब 3/2 से, और मल्टीप्लाइड बाई, अब इसको रोटेट किससे किया? रोटेट किया बाई एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, मतलब पाई एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो तुम मल्टीप्लाई कर दो e पावर i पाई, ओके। अब यहां पे मैंने पॉजिटिव लिया। पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। अगर मान लो क्वेश्चन में बोलता है कि इट इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ π/2 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? π/2 एंटी क्लॉकवाइज, तो e पावर आयोटा और प्लस π/2। अगर यही क्वेश्चन होता कि रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ पाई
इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो किससे मल्टीप्लाई करता? तो मैं मल्टीप्लाई करता ई पावर आई और माइनस पाई से। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, ई पावर आई पाई की वैल्यू कितनी होती है? ई पावर आई पाई का वैल्यू होता है कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। तो इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये तो जीरो है, ये -1 आएगा, तो ये बेसिकली -1 है। तो आंसर कितना आ जाएगा 3/2 इंटू -4 इंटू 5i, और इधर प्लस है, ओके, एंड दिस इंटू -1। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो -3/2 इंटू -4 प्लस 5i, तो ये बन रहा है 6 -15/2i, मतलब ए ऑप्शन आ जाएगा। और वैसे भी तुम देखोगे, देखो इसमें भी एक चालाकी मेथड है। अगर तुम्हें मान लो ये सब डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है, ये तो मैंने शॉर्टकट बता दिया, बट एक और शॉर्टकट है जो स्पेशली तुम इस क्वेश्चन में लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसके ऑप्शंस उतने अच्छे नहीं बनाए गए। तो इसमें कैसे कर सकते हैं, देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये यहाँ पे कहीं पे आएगा -4,5, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका जो वेक्टर बनेगा वो इस तरह का कुछ बनेगा। अब इसको तुमने रोटेट कर दिया, इसका एक तो एरो बड़ा कर दिया, ठीक है, एरो बड़ा कर दिया और फिर रोटेट कर दिया बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, तो 180 रोटेट करके एरो बड़ा कर दिया, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो एक ही तो ऑप्शन है जो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला है, जिसमें x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, एक ही ऑप्शन है, देखो ध्यान से, ठीक है, देयर इज ओनली वन ऑप्शन जिसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट वाला केवल एक ही ऑप्शन है। तो डायरेक्टली तुम मतलब ऑप्शन चेक करके भी इसको कर सकते थे, फाइन। अदरवाइज मेथड यही है कि जितने भी टाइम्स करना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, पुराना वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, और रोटेशन के लिए ई पार आई पाई या ई पार माइनस आई पाई जो भी होगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, उसके हिसाब से तुम उसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो एवरीथिंग यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड देन फाइनली यू विल गेट योर आंसर। तो आई होप ये शॉर्टकट जो है ये भी क्लियर हो गया होगा, फाइन। तो अगेन अगर आपको शॉर्टकट पसंद आया तो लाइक कर देना वीडियो को जरूर, ठीक है। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हियर इट इज सेइंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो देखो ऐसा क्वेश्चन तो जेईई मेन में आना ही आना है, ओके, डेफिनेटली कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन बार बार आता रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट तो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सबको आना ही चाहिए, ठीक है, ये किसी को मिस नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आता रहता है बार बार। तो अगर ऐसा क्वेश्चन भी यार हमसे नहीं हो रहा है, जो सब लोग करके आने वाले वो क्वेश्चन भी अगर हम नहीं कर पाएंगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो इसको तुम्हें करके ही आना है, ऐसा तुम डिफाइन कर लो, फाइन। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, a का वैल्यू कितना है 2 है ना, 4ax, तो 2 बाई m, और ये क्या लिखा हुआ है, ये हाइपरबोला, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, तो x स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1, ये आ गया। अब यहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस इसमें क्या होता है स्लोप फॉर्म, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, सो a स्क्वायर इज 1, सो 1 इंटू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके, सो माइनस b स्क्वायर इज 3। अब इसको कंपेयर कर लो, इसको कंपेयर कर लेंगे तो 2 बाई m शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 3, स्क्वायर कर दो, सो 4 बाई m स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 3, तो ये बन गया m पावर 4, सॉल्व कर लो बस अब, और -4, तो यहां से m स्क्वायर माइनस 4 और m स्क्वायर प्लस 1, ये आ रहा है, तो m का वैल्यू आ जाएगा +-2, ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो इसी को जीरो होना पड़ेगा, तो m इज +-2। अब इसको किसी भी एक में डाल दो, या तो इसमें या इसमें, ठीक है, तो m का वैल्यू है +-2, आई थिंक केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें स्लोप जो है वो +-2, दैट इज ऑप्शन ए, ओके, स्लोप शुड बी +-2, सो आंसर इज ऑप्शन ए, एक ही तो ऐसा ऑप्शन है, फाइन, इजी था, ठीक है, ये तो करके ही आना चाहिए था एग्जाम में। Okay, next question. The angle between the tangents which are drawn from this point, ये एक external point है, ठीक है, मतलब एक ellipse है और एक बाहर का point है, बाहर का point यहाँ पे कहीं पे है, वहां से दो tangents बनाए, तो उनके बीच का एंगल पूछ रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, ठीक है, एक ellipse है और बाहर का point है, एक्सटर्नल point है, दिस point is 4,5, ओके। तो अब देखो यहाँ पे भी अगेन यू कैन यूज लिटिल बिट ऑफ कॉमन सेंस या जो भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट से तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि अगर मान लो इलिप्स में क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, सबको पता है ना, डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन इलिप्स के केस में वो ये होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आई थिंक पढ़ा होगा। और डायरेक्टर सर्कल पे अगर कोई भी हम पॉइंट लेते हैं और वहां से दो टेंजेंट बनाएंगे तो उनके बीच का एंगल जो आएगा वो 90 डिग्री आएगा,
ठीक है, तो इस केस में बताओ डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 25, ये हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये तो हो गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। अब उसमें इस पॉइंट को पुट करना, क्या ये पॉइंट जो है 4,5 क्या ये डायरेक्टर सर्कल पे लाई करता है, तो क्लियरली दिख गया ना, ये आ जाएगा 4 स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 स्क्वायर, सो दैट इज 16 प्लस 25। तो क्लियरली ये जो पॉइंट है 4,5 वो हमारा इसका जो इलिप्स का डायरेक्टर सर्कल होगा उस पे लाई कर रहा है। तो वहां से दो टेंजेंट बनाएंगे, उनके बीच का एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। फाइन, सो व्हेनेवर द पॉइंट इज लाइंग ऑन डायरेक्टर सर्कल, तो तुम सीधा सीधा इसको चेक कर सकते हो कि डायरेक्टर सर्कल पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर एक ऑप्शन 5/2 है तब तो डेफिनेटली चेक करना ही चाहिए, क्योंकि 90% टाइम्स आपका वही ऑप्शन निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आ गया 5/2 विच इज 90 डिग्री। फाइन, बिकॉज द पॉइंट इज लाइंग ऑन डायरेक्टर सर्कल। ओके, वन मोर क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर जेई का ही क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द PYQs। ओके, बट इसको सॉल्व करके भी आपको बहुत मजा आएगा। फाइन, यहाँ पे वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। जीपी का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बट यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोगों को थॉट देना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। फाइन, तो इसको करते हैं। ठीक है, इफ यू वांट टू टेक टाइम यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक योर टाइम। ओके, एंड आफ्टर दैट ओनली यू कैन सी द सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो एक जीपी है, A1 A2 A3 ये सब जो है ये जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और यहाँ पे ये एक बात और भी गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर तुमने नहीं पढ़ा तो आंसर गलत आएगा। यहाँ पे लिखा है कि जो फर्स्ट टर्म है A1 वो नेगेटिव है, तो इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। फिर A1 प्लस A2 गिवन है, A3 प्लस A4 गिवन है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं ना, A1 को ले लेते हैं A, तो A2 कितना आ जाएगा, A इंटू आर आ जाएगा, कॉमन रेशियो R ले लो, दिस इज इक्वल टू 4, ये गिवन है। और A3 मतलब ये आएगा AR स्क्वायर और A4 आएगा AR क्यूब, दिस इज इक्वल टू 16। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो A की वैल्यू आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी, फिर ये जो लिखा हुआ है दिस इज नथिंग बट सम ऑफ 9 टर्म्स ना, A1 प्लस A2 प्लस A3 टिल A9, मतलब सम ऑफ 9 टर्म्स निकालना, S9 निकालना, दैट इज इक्वल टू 4 लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर A आ गया R आ गया तो हम S9 निकाल लेंगे ना, सम ऑफ 9 टर्म्स निकाल लेंगे, फिर लैम्डा भी आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है, बस इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम A कॉमन ले लो, A कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस R दैट इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे कॉमन क्या है, AR स्क्वायर कॉमन है, तो 1 प्लस R दिस इज इक्वल टू 16। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, देखो अगर डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये भी कैंसिल हो गया, तो सीधा सीधा R स्क्वायर का वैल्यू आ गया 4। और अगर R का वैल्यू 4 है, मतलब R का वैल्यू या तो 2 हो सकता है या -2 हो सकता है। ठीक है, R का वैल्यू या तो 2 होगा या -2 होगा। अब ध्यान से सुनो, ये वाली जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, ये लिखा हुआ है A इंटू 1 प्लस R इक्वल टू 4। तो मान लो अगर R का वैल्यू 2 है, ओके, अगर R का वैल्यू 2 है तो A का वैल्यू कितना आएगा, 4/3 आएगा। और अगर R का वैल्यू -2 है, इसमें पुट करो, इसमें पुट करेंगे ना, तो -2, तो A का वैल्यू आ जाएगा -4। अब क्वेश्चन में गिवन है कि A तो नेगेटिव है, फर्स्ट टर्म तो नेगेटिव होना चाहिए, तो ये जो केस है ये तो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो दिस इज रिजेक्टेड, और ये हो जाएगा एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये हमारी आ गई A की वैल्यू और R की वैल्यू। अब S9 निकाल दो, बस S9 निकालना है। ओके, सो A is -4, R is -2 and we want to find out sum of 9 terms. So sum of 9 terms, what is the formula? A into R raised to number of terms -1 divided by R -1. तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, तो -4 यहाँ पे आ जाएगा -2 पावर 9 -1। अब तो बस कैलकुलेशन है, तो जल्दी से सॉल्व करो, चलो -2 -1, तो ये आ गया 4/3, और यहाँ पे ये इसका वैल्यू होता है -512 -1। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 4 लैम्डा ना, या दिस इज इक्वल टू 4 लैम्डा, इसको कर दो इक्वल टू 4 लैम्डा, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा का जो वैल्यू है दैट विल बी 1/3 ऑफ -513, तो ये आ जाएगा -171। ठीक है, सो आंसर इज -171, सी इज द आंसर। ओके, सो फाइनली द आंसर इज माइनस, बस इसका ध्यान रखना था कि फर्स्ट टर्म जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। अगर इसको लेके तुमने S9 निकाल दिया और गलती से मतलब आंसर आ गया, ठीक है, इसमें ऑप्शन में जरूर होगा, तुम करके देखना, यहाँ से S9 निकालोगे ना, फिर जो आंसर आएगा लैम्डा का वैल्यू वो कहीं ना कहीं इसमें जरूर होगा, तो लेकिन वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट विल नॉट बी द आंसर, ओनली यू विल गेट आंसर फ्रॉम हियर।
तो इसका ध्यान रखना था। एंड आई ऑलवेज से दैट जेई इज अ प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, अगर आपने कोई भी गलती कर दी, अगर छोटी सी भी गलती कर दी, मतलब बस वहीं पे खेल खत्म। ओके, तो यहाँ पे आपको बस गलतियों से, अपनी ही गलतियों से बचना है। फाइन, अगर आप गलतियों से बच जाओगे, गलतियों को करेक्ट कर लोगे, सही तरीके से क्वेश्चन करके आ गए, टाइम लगा दो बट आंसर सही आना चाहिए। फाइन, तो अगर आपने आंसर करेक्ट कर दिया तो बस तुम्हें कोई नहीं रोक सकता जेई में सिलेक्ट होने से। फाइन, तो आई होप यहाँ पे ये क्वेश्चन करके भी मजा आया होगा। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दिस विल बी योर होमवर्क। ठीक है, इसको ट्राई करो। अगेन दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट का आसान सा कॉन्सेप्ट है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो के बाद कमेंट करके बता देना। फाइन, तो जो भी होमवर्क क्वेश्चन दिया है उसको कमेंट करके आंसर बताओ, उसका आंसर क्या होगा। एंड फाइनली ऑल्सो टेल योर स्कोर, कि आपका स्कोर अभी तक कितना बना। एक बार जेन्युइनली इसको ट्राई करना। ठीक है, राइट नाउ लाइक टुडे इज संडे बट स्टिल आई एम कमिंग अप फॉर क्लासेस फॉर यू गाइज, so that you can prepare very well for your JEE main and JEE advanced examination। ठीक है, ताकि आप एकदम मचा के आओ, और जब एग्जाम आपका अच्छा हो जाएगा तो फाइनली तुम मुझे बोलने जरूर आना कि सर एग्जाम अच्छा हो गया। ठीक है, मुझे जो अंदर से खुशी मिलेगी ना कि वाओ, मतलब मेरे स्टूडेंट्स ने एग्जाम में मचा दिया। फाइन, सो डेफिनेटली यू नीड टू कमेंट द आंसर ऑफ द होमवर्क क्वेश्चन, और अपना जो फाइनल स्कोर हुआ है वो भी मुझे एक बार कमेंट करके बताओ। देन विल सी कि दैट इज गुड, और उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है वो भी तुम्हें सोचना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सो इफ यू आर इन 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड, और अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से वीक रह गए हैं, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई कोर्स, यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स, दिस इज हैपनिंग ऑन अवर प्लस प्लेटफॉर्म। फाइन, ये एकदम ही डिटेल कोर्स रहने वाला है, तो आपको यहाँ पे एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ पढ़ाया जाएगा। फाइन, ऑल्सो let me tell you some of the benefits of getting the Unacademy subscription also. Like you will get all the live classes, all the classes are live, and you can study from any teacher. Okay, you can study from any teacher and every teacher. यहाँ पे बहुत सारे educator, like 100+ teachers are there. Okay, top teachers are there who are teaching in IIT JEE category. Fine, you can interact with the educator also. Live poll और leader board भी होता है। ठीक है, आप मतलब अगर क्वेश्चन तो करते जाओगे, ठीक है, हार्डवर्क बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सबसे जल्दी कर रहा है, कौन फास्ट कर रहा है और कौन करेक्ट भी कर रहा है। तो यहाँ पे जब तक आप इस तरह के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में नहीं जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा। अगर मान लो हो सकता है 100 बच्चे जो तुमसे जल्दी कर रहे हैं, तुम्हारा आंसर इतना लेट आ रहा है। ओके, सो दिस फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर, दिस फीचर इज ऑल्सो देयर ऑन आवर प्लस क्लासेस। यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज भी चल रही है। ओके, मॉक टेस्ट इज ऑल्सो गोइंग on our plus platform, so there you can give the test series। ठीक है, आप उसको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट एनालिसिस ऑल्सो कि कौन से चैप्टर है वीक है, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है, वो सब भी आपको पता चल जाएगा। एंड ऑल्सो यू विल गेट टू नो योर रैंक कि आप अभी इस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। सो डेफिनेटली आई थिंक यू शुड गिव द मॉक टेस्ट विच इज हैपनिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म। फाइन, और यहाँ पे एक और फीचर है, दैट इज ऑल योर डाउट्स, लाइक एवरी 4th क्लास इन अनअकैडमी इज अ डाउट क्लियरिंग क्लास। तो आपके जितने भी डाउट्स है वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। फाइन, सो एज यू नो गाइज, लाइक द बेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया, राइट, एज आई सेड, लाइक 100+ टीचर्स आर देयर हु आर टीचिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म राइट नाउ। तो यहाँ पे जो कोटा के टीचर्स है, कोटा के बेहतरीन टीचर्स है, उनका भी बैच यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जो टॉप ऑथर्स ऑफ द कंट्री है, लाइक डीसी पांडे सर, ठीक है, वो भी लाइव पढ़ाते हैं अनअकैडमी पे, लाइव पढ़ाते हैं वो भी। फाइन, तो मतलब सबका सपना रहता है यार, उनकी किताबें पढ़ पढ़ के आईआईटी में हो रहा है सबका, तो वो डीसी पांडे सर वो खुद लाइव पढ़ाते हैं। ठीक है, अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, एंड द एंटायर टीम ऑफ जेई लाइव डेली, वो सब टीचर्स भी यहाँ पे लाइव पढ़ा रहे हैं। फाइन, सो यू कैन एनरोल एंड यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। ओके, सो इफ यू वांट द सब्सक्रिप्शन यू नीड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल द ऐप। उसके बाद आप यहाँ पे चले जाइए प्लस सेक्शन में, देन सिलेक्ट योर गोल विच इज IIT JEE एंड क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। देन यू विल गेट अ स्क्रीन लाइक दिस। यहाँ पे आपको अपना टाइम पीरियड सिलेक्ट करना है कि you want the subscription for 1 month or 2 months, 3 months or 6 months, accordingly. Okay, accordingly the prices are also given here, but the most affordable one is 1 year and 2 year. Okay, so since right now the batches are starting, so you can go for either 1 year subscription or 2 year subscription. So ideally if you are there in 11th standard, you can select a 2 year subscription. If you are there in 12th standard, then you can select 1 year subscription. So this is for 12th, this is for 11th. Even if you are in 9th standard or 10th standard, यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो 9th या 10th में अभी है, और वो टारगेट कर रहे हैं कि हम 10th में ही 12th का सिलेबस खत्म कर देंगे। So if you are starting early, definitely you will get edge over the other students also who are preparing for IIT JEE.
तो जितना तुम जल्दी स्टार्ट कर सकते हो उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए, ठीक है। जो भी टॉप रैंकर्स है वो डेफिनेटली 9th-10th में स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो बिल्कुल भी इसमें लेट नहीं करना चाहिए। और अभी भी किसी को लग रहा है कि यार ये प्राइजेस बहुत ज्यादा है, तो एक बार सोच के देखो, दिस प्राइस इज फॉर 2 years। जहां पे आपके कोचिंग वाले 2 लाख 4 लाख रुपए ले रहे हैं हियर फॉर 2 years, ओके, नॉट इवन फॉर 1 year, लाइक 2 years इट इज ओनली 32,000। और इसका अगर आप पर डे का प्राइस निकालोगे सो इट कम्स अराउंड 40 to 50 रुपीज अ डे, ठीक है। 40 to 50 रुपीज अ डे में आपको फिजिक्स भी पढ़ने को मिलेगा, वो भी मल्टीपल टीचर्स है, इतने सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। जिनसे आपको अच्छा लगे उनसे आप पढ़िए, ठीक है। केमिस्ट्री भी आपको मिलेगा, मैथ्स भी मिलेगा, उसके अलावा लाइव मॉक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, डाउट्स भी आपके सारे के सारे क्लियर किए जाएंगे। तो इतने सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं जस्ट फॉर 40 to 50 रुपीज अ डे। और एक बात मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप अपनी लाइफ में अभी कुछ इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, इफ यू आर इन्वेस्टिंग सम एक्स अमाउंट, ओके, यहाँ पे आप अगर 1 year का लेते हैं या 2 year का लेते हैं, so if you are investing x amount in your life, in your career, in your IIT JEE preparation, तो इसका आउटपुट आपको 2 साल बाद 100x का डेफिनेटली मिलेगा। जब आप IITian बन जाओगे, अच्छे कॉलेज से इंजीनियर बन जाओगे, तो आप इसका 100 times, आई एम श्योर, डेफिनेटली आई कैन से दिस, कि आप इसका 100 times तो कम से कम, लाइक मिनिमम यू विल अर्न। तो इस अमाउंट के बारे में इतना मत सोचो, दिस इज वेरी मिनिमम एंड दिस इज फॉर नाउ। जैसे ही बैचेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे सो दिस प्राइजेस आल्सो माइट इंक्रीज। तो अगर किसी को प्लस पे आना है सो राइट नाउ इज द बेस्ट टाइम, so just go for it, okay। and if you are coming on plus, additionally you can use my code also, which is NVLive। इससे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है, okay। so you can use my code NVLive for getting additional 10% off। so that is it from my side guys, you need to like, share and subscribe to the channel, okay। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ऐसी मॉक टेस्ट आती रहेगी आपके लिए, ठीक है। योर जेई मेन एंड एडवांस की प्रिपरेशन के लिए ऐसे मॉक टेस्ट मैं टाइम टू टाइम लेता हूँ, फाइन। तो यहाँ पे इसको सब्सक्राइब भी कर लेना, so that you get notification whenever I am taking a live quiz or a mock quiz, fine। this is the list of all the channels that we have, and all together the entire team of Unacademy, we are on a mission, and that mission is let's crack it, okay। so definitely crack karenge। and if anybody is coming on plus, once again you need to use my referral code, which is NVLive। so that is it from my side guys, goodbye, see you in the next lecture।